This diagram shows life cycle of a frog belonging to the genus Xenopus. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वो Xenopus जीनस के फ्रॉग्स के बारे में होती हैं. So in this case we can see in the diagram the female frog is larger as compared to the male frog. After the process of fertilization, an egg is formed. We can see that the early development, it takes a few hours in the life cycle of Xenopus. Just in 3 hours, as a result of cleavage, a blastula is formed. Within the next 7 hours, gastrulation is completed and a gastrula is formed, which has 3 germinal layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Within 8 years, organ formation starts and a neurula is formed, which has a notochord, a neural tube, mesodermal somites, and so on. In the next 12 hours, tailbird is formed. In the next 20 hours, late tailbird is formed. In the 36 hours, tadpole is formed. This tadpole is converted into an adult frog within a period of 12 months. So we can see that early development takes place very rapidly. However, the process of metamorphosis, it takes about 12 months. So let's start about gastrulation. Gastrulation in frog is considered to be both one of the oldest as well as one of the newest areas of experimental biology. फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन एक बहुत अरसा पहले इसके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी में तहकीक का आगाज हुआ था, तो इसलिए इसको हम ओल्डेस्ट एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं और न्यूएस्ट इसलिए कहते हैं कि फिल वक्त भी करंटली भी इसके ऊपर बहुत तहकीक हो रही है गैस्ट्रुलेशन पे और अर्ली डेवलपमेंट पे. The mechanism of their development has been revised over the past decade. पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट के मैकेनिज्म के ऊपर बहुत सी तहकीक हुई है, बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं और बहुत सी रिविजन्स की गई हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. The gastrulation studies have been complicated as a number of morphogenetic movements are involved in it. फ्रॉग्स में गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस केस में भी हम देख सकते हैं कि सेल्स मुख्तलिफ किस्म की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स शो करते हैं. ये डायग्राम हमें दो मेजर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को शो कर रही है. द टू मेजर टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स during gastrulation include epiboly and imboly. So the blue colored cells, they are showing epiboly. Epiboly का मतलब है when the cells they spread in all direction. So we can see in these diagrams that the blue colored cells from the animal pole, they are spreading all over the yellow colored cells of the vegetal pole. So at the end of gastrulation, the cells from the animal pole, they completely extend all over the cells of the vegetal pole. So these types of movements, they are known as epiboly. The second type of movement that the frog embryo undergoes is known as imboly. Imboly further includes various types of cell movements. These are invagination, convergence, involution, divergence, extension and constriction. अगर आप
हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि गैस्ट्रुलेशन एंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पे था, अगर आप उसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे उसमें हमने डिटेल में इन morphogenetic movements को define किया है, and you can revise that again. So here we can see the cells of the vegetal pole. यहाँ पे जो movements हैं they are showing इम्बोली. इम्बोली में इन्वेजिनेशन भी है और इन्वोल्यूशन भी है. तो आप देख सकते हैं सेल्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं. कुछ सेल्स यहाँ से ब्लू कलर्ड एरिया से भी अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं और कुछ येलो कलर्ड एरिया के सेल्स भी अंदर मूव कर रहे हैं. सो दीज आर द इन्वोल्यूशन एंड इन्वेजिनेशन मूवमेंट. Prior to the studies of morphogenetic movements involved in gastrulation, one should consult the fate map of frog's blastula. तो इससे पहले कि हम इन morphogenetic movements के बारे में डिटेल में बात करें, हमें फेट मैप, फ्रॉग के फेट मैप जो कि ब्लास्टुलेशन स्टेज पे फेट मैप है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए या हमें उससे कंसल्ट करना चाहिए. फेट मैप का मतलब है कि ऐसा मैप, सेल्स का मैप जो हमें फेट यानी कि ये बता सके कि फ्यूचर में ये सेल्स कौन सा ऑर्गन फॉर्म करेंगे विद इन द बॉडी ऑफ द फ्रॉग. The late blastula of frog is composed of the presumptive organ forming areas arranged around the blastocylic space. The yolk-laden future endodermal cells form the hypoblast at the vegetal pole, while the rest part forms the epiblast. तो ये हम देख सकते हैं, this is the frog blastula stage fate map. हम यहाँ पे देख सकते हैं the blue colored cells of the animal pole, they will form epidermis or skin. The green colored cells of the animal pole, they will form the neural plate and the nervous system. The pink colored cells here in the mid, they will form mesoderm, that is muscles, kidney, bones and gonads. And the yellow colored cells here in the vegetal pole, they will form the endoderm, that is the digestive organs, lungs, etc. Physiological changes in the presumptive organ forming areas at the time of gastrulation. During the process of gastrulation, the late blastula undergoes a striking physiological change in the presumptive organ forming areas of the epiblast. तो यानी कि gastrulation के process में जो लेट ब्लास्टियोला है जिसको अभी हमने कंसल्ट किया, हमने देखा उसकी डायग्राम, ये जो ब्लास्टियोला है इट अंडरगोज ए स्ट्राइकिंग फिजियोलॉजिकल चेंज इन दी प्रिजम्पटिव ऑर्गन फॉर्मिंग एरियाज ऑफ एपीब्लास्ट. ज्यादातर चेंज एपीब्लास्ट एरिया में यानी कि ब्लू और ग्रीन एरियाज में होगा. इंटरचेंजेस ऑफ सेल्स फ्रॉम द एपिडर्मल area to the neural area or to the mesodermal area and vice versa are possible during the early phase of gastrulation. Also, no such physiological changes take place in the hypoblast, that is in the presumptive endodermal cells. यानी कि ज्यादातर changes epidermal cells में, mesodermal cells में, neural plate के जो cells हैं उनमें हम देख सकते हैं, यानी कि epiblast में हम देख सकते हैं. दूसरी तरफ vegetal pole पे जो endodermal cells मौजूद हैं, hypoblast है, उनमें कुछ बहुत बड़े changes हम नहीं observe करेंगे during gastrulation. अब हम बात करेंगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ ब्लास्टोपोर. द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री रिजल्ट्स इन रोटेटिंग द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम to 30 degrees animally upwards. This produces a new symmetry in the fertilized egg as it becomes bilaterally symmetrical due to its formation of a dorsal ventral axis. यानी कि जब स्पर्म एग में दाखिल होता है तो उसके बाद जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है ओवम का वो 30 डिग्रीज ऊपर की तरफ अपवर्ड्स रोटेट करता है. और इसका मतलब ये है कि अब फर्टिलाइज्ड एग में एक नई सिमेट्री ने जन्म लिया है. इस सिमेट्री की वजह से एक डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस फॉर्म हुआ है और इसके बाद हम कह सकते हैं कि अब
एग जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, क्योंकि हम जानते हैं इस एग की डोर्सल साइड कौन सी है, इसकी वेंट्रल साइड कौन सी है. These cytoplasmic movements activate the cytoplasm opposite to the point of sperm entry in initiating gastrulation. ये जो चेंजेस आते हैं इनकी वजह से, इन साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स की वजह से जो साइटोप्लाज्म स्पर्म एंट्री के बिल्कुल ऑपोजिट है वहां पे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाती है. It will form the blastopore and become the dorsal portion of the body. तो ये जगह जो कि स्पर्म एंट्री पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट है वो ब्लास्टोपोर फॉर्म करेगी और वो डोर्सल पोर्शन ऑफ द बॉडी भी फॉर्म करेगी. If the cortical rotation is blocked, there is no dorsal development and the embryo dies. The sperm does not induce these movements in the egg cytoplasm, but it is important in determining the direction of the rotation. तो स्पर्म की वजह से ये तब्दीलियां नहीं आती, बल्कि स्पर्म की जो एंट्री पॉइंट है वो डिटरमाइन करता है कि रोटेशन किस तरफ होगी. तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हाउ स्पर्म एंट्री इंड्यूसेस ए डोर्सो वेंट्रल एक्सिस ऑफ द xenopus embryo. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द एग साइटोप्लाज्म. तो ये हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कॉर्टिकल रोटेशन, तो ये 30 डिग्रीज कॉर्टिकल रोटेशन है. इस रोटेशन की वजह से हम देख सकते हैं कि अब यहाँ से साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. एंड नाउ दिस इज द वेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी जहाँ पे स्पर्म एंटर हुआ था, एंड दिस इज द डोर्सल एक्सिस ऑफ द बॉडी. इसकी वजह से हम इस सेल को जो है हम अब बायलेटरल सिमेट्रिकल कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज द वेंट्रल एक्सिस, दिस इज द डोर्सल एक्सिस ऑफ द बॉडी. सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो डोर्सल एक्सिस है यहीं पे ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन होगी. इम्बोली. अब हम चूंकि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने बात की कि स्पर्म की एंट्री के बाद सेल रोटेशन कैसे होगी. अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इम्बोली की. इनवेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन. इम्बोली जो है वो हम इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल्स को कहते हैं. तो सबसे पहले हम इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन, जो कि दो तरह की मूवमेंट्स हैं. इन्वेजिनेशन का मतलब है सिंपली इनवर्ड सिंकिंग ऑफ द सेल्स, और इन्वोल्यूशन का मतलब है इनवर्ड मूवमेंट ओवर एन एज. Gastrulation in xenopus is initiated when a group of marginal endodermal cells just below the gray crescent area on the dorsal surface undergo invagination by folding inward and forward toward the future cephalic end of the embryo. तो हमने बात की थी कि अभी हमने बात की थी वेंट्रल और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो की. तो यानी कि ये फॉर एग्जांपल अगर स्पर्म की एंट्री पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगी, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी. तो हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या होगा, इन्वेजिनेशन होगी. इन्वेजिनेशन कैसे होगी? व्हेन अ ग्रुप ऑफ मार्जिनल एंडोडर्मल सेल्स जस्ट बिलो द ग्रे क्रिसेंट एरिया दे अंडरगो इन्वेजिनेशन. तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं जब ये इन्वेजिनेट करेंगे तो दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन. The outer or apical surfaces of these cells contract dramatically while their inner or basal ends expand. तो हम देख सकते हैं कि इनके जो आउटर या एपिकल सर्फेसेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और इनर या बेसल एंड्स इनके एक्सपैंड होंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डोर्सल, इन्हीं दो प्रोसेसेस की वजह से, इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन की वजह से द डोर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर विल बी फॉर्म. ये देख सकते हैं हमने जो अभी बात की कि ये ग्रे क्रिसेंट का एरिया है. दिस इज द साइट वेयर मेजर सेल मूवमेंट विल बिगिन एट द स्टार्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन. ठीक है, दिस इज द न्यूरल एक्टोडर्म दैट विल फॉर्म द नर्वस सिस्टम. दिस इज द एक्टोडर्म दैट विल फॉर्म द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन. दिस इज द endoderm and this pink area here is the mesoderm. So सबसे पहले इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन स्टार्ट होती है. दूसरी बात हमने की कि आउटर और एपिकल सर्फेसेस कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इनर सर्फेसेस एक्सपैंड होंगी. तो ये हम देख सकते हैं कि इनर सर्फेसेस इन सेल्स की एक्सपैंड हो रही हैं,
ये आप देख सकते हैं, these are expanding। यही वजह है कि इन सेल्स को अब ये जो इनकी एपिकल सर्फेसेस हैं ये सिकुड़ रही हैं और इनर सर्फेसेस इनकी एक्सपैंड हो रही हैं। इस वजह से these endodermal cells are now called the bottle cells, and due to their invagination, the dorsal lip of the gastrula is formed. Okay, so this is a section through an advanced amphibian gastrula showing the flask-shaped bottle cells moving into the interior of the embryo at the blastopore. तो ये blastopore की formation हो चुकी है and they are moving inside. So this is this cavity here. This is the blastocoele. Harden and Keller have shown that the bottle cells of Xenopus, although play a role in initiating the involution of marginal zone, they are not essential for gastrulation to continue. Although के involution इन्हीं bottle cells की वजह से होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनकी वजह से, अगर इनको remove भी कर दिया जाए तो gastrulation continue करेगी। This has been experimentally proved that when these bottle cells are removed, after their formation, involution, blastopore formation and its closure still continues. ठीक है, तो सबसे पहले involution होती है। अगर इन bottle cells को रिमूव भी कर दिया जाए तो इन्वोल्यूशन का प्रोसेस जारी रहेगा, ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन भी जारी रहेगी और इसका क्लोजर भी होगा। तो ब्लास्टोपोर के क्लोजर का मतलब ये है कि जहां पे हमने बात की कि एक डॉर्सल लिप फॉर्म हुआ, इसी तरह एक वेंट्रल लिप फॉर्म होगा, लेटरल लिप्स फॉर्म होंगे और ब्लास्टोपोर एक कंप्लीट सर्कल की सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। तो हम यहाँ पे भी यही देख सकते हैं, आफ्टर द इनिशियल डॉर्सल लिप इज फॉर्म, involution begins dorsally. Much of the process of gastrulation consists of surface cell moving into the interior of the embryo through the blastopore. So gastrulation का जो process है इसमें क्या होता है, इसमें जो surface cells हैं they keep moving into the interior of the embryo through the blastopore. यानी blastopore, ये blastopore है, जब ये blastopore form हो गया तो cells will just move inside into the interior of the blastopore. As cells turn inward or involute around the lips of the blastopore, they are followed by other cells which move over the surface of the embryo towards the blastopore. So ज़्यादा से ज़्यादा cells हम देख सकते हैं surface से move करेंगे towards the blastopore and into the interior of the embryo. As the endodermal cells migrate inward, अभी तक हमने बात की है एंडोडर्मल सेल्स की माइग्रेशन की, ठीक है, इन सेल्स की इन्वेजिनेशन हो रही है। एंडोडर्मल सेल्स कहाँ से आए, दिस इज द एनिमल पोल, दिस इज द एनिमल पोल। अगर आपको याद हो हमने ब्लू एरिया और ग्रीन एरिया की बात की थी, तो ये एक्टोडर्मल एनिमल पोल है, जबकि ये वेजिटल पोल है। एंडोडर्मल सेल्स ये येलो कलर के सेल्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहले इन्वेजिनेशन किन सेल्स की हो रही है, एंडोडर्मल सेल्स की। तो अभी तक हमने एंडोडर्मल सेल्स की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से द प्रीकॉर्डल प्लेट सेल्स followed by the notochordal cells involute to the inside. अब कुछ और सेल्स जिसमें मेसोडर्मल सेल्स भी मौजूद हैं और कुछ और सेल्स भी यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेंगे। नाउ दिस इज इन्वोल्यूशन, ये इन्वोल्यूशन हो रही है, ठीक है। जब इन्वेजिनेशन हो गई तो आप देख सकते हैं इस एज के अराउंड द सेल्स आर मूविंग। पहले दे आर प्लेस्ड हियर, द रेड कलर एंड पर्पल कलर सेल्स दे आर प्लेस्ड हियर, नाउ दे आर मूविंग एट दिस एज and this is the process of involution, this is the process of involution, ठीक है। तो हम देख सकते हैं now the chorda mesoderm is lying here and the precaudal mesoderm is lying here and this is the floor of the blastocoele cavity, ये blastocoele cavity है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं कि ये सेल्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं and this is the advent of archentron. Convergence, extension and divergence. The more laterally situated notochordal cells converge towards the dorsal lip
and gradually pass to the inside and lie in the mid dorsal region of the embryo. तो अभी हमने कॉर्डा मेसोडर्म की बात की, ये सेल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे एंड आफ्टर मूविंग इनसाइड अब हम देख सकते हैं these cells that will form the notochord, they will lie in the mid dorsal region of the embryo at the end of the gastrulation. So this is xenopus embryo before gastrulation and this is xenopus embryo after gastrulation. Now the chorda mesoderm or the notochordal cells, they are lying in the mid dorsal region of the embryo. Here the notochordal cells undergo extension anterior-posteriorly and form a narrow band of cells below the neural plate area and on the dorsal side of the embryo. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब न्यूरल प्लेट भी एक्सटेंड कर चुकी है. ठीक है, अगर आपको याद हो हमने शुरू में एक डायग्राम देखी थी, उसमें ग्रीन कलर का रीजन न्यूरल एक्टोडर्म का था और बाकी ब्लू रीजन एपिडर्मल एक्टोडर्म का था. तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का रीजन था न्यूरल एक्टोडर्म का, वो रीजन भी एक्सटेंड कर चुका है एट द लेट गैस्ट्रुला स्टेज. तो अब न्यूरल प्लेट यहाँ पे मौजूद है. So late blastula sagittal section through the midplane, process of epiboly and emboli. तो हम यहाँ पे एपिबोली और इम्बोली को देख सकते हैं. इम्बोली का मतलब है सेल्स किस तरह से अंदर की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, ये हम देख सकते हैं. और एपिबोली का मतलब है सेल्स कैसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एपिबोली का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटेंशन जो है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है और यहाँ पे ब्लास्टोपोर का क्लोजर हो चुका है इनटू अ स्मॉल राउंड सर्कुलर ओपनिंग. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये आप देखें यहाँ पे ए में आप देख सकते हैं न्यूरल एक्टोडर्म एक स्मॉल प्लेट है. बी में ये प्लेट एक्सटेंड कर रही है न्यूरल एक्टोडर्म जिसको हम कह रहे हैं. अगेन मैं रिवाइज करूंगी, हमने शुरू में एक डायग्राम देखी थी, द ग्रीन कलर शोइंग द न्यूरल एक्टोडर्म एंड द ब्लू कलर शोइंग द एपिडर्मल एक्टोडर्म. तो अब आप देखें यहाँ पे वो जो ग्रीन कलर की प्लेट थी हमने उसको ब्लैक कलर में शो किया है न्यूरल एक्टोडर्म. हम देख सकते हैं ए से बी में ये एक्सटेंड कर रही है, सी में ये ज्यादा एक्सटेंड कर रही है, एपिबोली शो कर रही है. ठीक है, और अब हम आगे देख सकते हैं डी में ये प्लेट ज्यादा लंबी हो चुकी है, ई में इसकी लेंथ और भी एक्सटेंड कर चुकी है, एफ में हम देख सकते हैं ये प्लेट और भी एक्सटेंड कर चुकी है. इसी तरह से अगर हम ए से स्टार्ट करें तो ये एपिडर्मल एक्टोडर्म भी ये प्लेट एक्सटेंड कर रही है और हम देखेंगे कि ये जो एंडोडर्मल रीजन है ये अंदर की तरफ, ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एंडोडर्मल सेल्स अंदर की तरफ मूव कर चुके हैं. और अब ये सारी एपिडर्मल एक्टोडर्म जो है इसने इनको इनगल्फ कर दिया है, इनके ऊपर इनको कवर कर दिया है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एपिबोली. और इम्बोली का क्या मतलब है? इम्बोली का मतलब है एंडोडर्म के सेल्स का अंदर की तरफ मूव करना. यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एंडोडर्मल सेल्स बाहर हैं ए, बी और सी में, और ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये हमें इनकी मूवमेंट नजर आ रही है एट द पॉइंट ऑफ ब्लास्टोपोर और ये मूवमेंट इन्वेजिनेशन के थ्रू हो रही है. और अब हम यहाँ पे एफ तक हम देख सकते हैं तमाम एंडोडर्मल सेल्स अंदर मूव कर चुके हैं और ये इम्बोली का प्रोसेस है. और एपिबोली का क्या प्रोसेस है? एपिबोली का प्रोसेस है एक्सटेंशन ऑफ द शीट ऑफ सेल्स ऑफ एक्टोडर्म इंक्लूडिंग द न्यूरल प्लेट सेल्स एज वेल एज द एपिडर्मल एक्टोडर्म ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो. तो हम देख सकते हैं एंडोडर्म अंदर जा चुकी है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बोली और बाय द प्रोसेस ऑफ एपिबोली एक्टोडर्म जिसमें एपिडर्मल एक्टोडर्म भी है और न्यूरल एक्टोडर्म भी है, दोनों ने पूरे एम्ब्रियो को इनगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जी, एच एंड आई में. तो दिस इज द आई में, दिस इज द लेट गैस्ट्रुला. तो हम देख सकते हैं कि एंडोडर्म सिर्फ एक छोटे से योक प्लग की फॉर्म में विजिबल है. ठीक है, एट द साइट ऑफ द ब्लास्टोपोर. और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द ट्रंक ऑर्गेनाइजर रीजन
दिस इज द हेड ऑर्गेनाइजर रीजन, और ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ठीक है, सोमाइट एरिया है। तो हम देख सकते हैं कि जूं गैस्ट्रुलेशन प्रोग्रेस करती है, 3 प्रोसेसेस गैस्ट्रुलेशन में, 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। सबसे बाहर कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म है, जो कि हमने अभी बात किया कि एपिबोली के प्रोसेस से एक्टोडर्म ने पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं इम्बोली में, हम देख सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन एंडोडर्म बिल्कुल अंदर चली गई, और इम्बोली का जो दूसरा प्रोसेस है इन्वोल्यूशन, उसकी वजह से हम देख सकते हैं जो कॉर्डा मेसोडर्म थी या मेसोडर्म थी, वो अब उसने अपने आप को कहाँ पे प्लेस किया है? बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मेसोडर्म ने अपने आप को एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान प्लेस कर लिया। इस तरह से सबसे बाहर लेयर एक्टोडर्म हो गई, ठीक है, उसके बाद अंदर लेयर हो गई मेसोडर्म, और सबसे अंदर जो लेयर है वो एंडोडर्म है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन द 3 लेयर्स आर फॉर्म्ड। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें सिर्फ एक्टोडर्म नजर आएगी। एक्टोडर्म में भी हमें न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म नजर आएगी और एपिडर्मल एक्टोडर्म नजर आएगी, क्योंकि बाहर सिर्फ एक्टोडर्म है जिसने तमाम एम्ब्रियो को कवर कर लिया है। जबकि अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन देखें तो हम देख सकते हैं कि ये दिस इज दी एक्टोडर्म, ये तमाम एक्टोडर्म है, ठीक है, इसमें न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म भी है और एपिडर्मल एक्टोडर्म भी है, और यहाँ पे मेसोडर्म है और अंदर एंडोडर्म है। So we can see the 3 layers. As gastrulation proceeds, the endodermal cells, they move more inwards. As the endodermal cells below the site of invagination begin to rotate inward, the dorsal blastoporal lip starts widening. At the same time, the presumptive somatic mesoderm located externally along either side of the notochordal areas migrates or converges towards the forming dorsolateral lips of the blastopore. यानी कि mesoderm भी अंदर की तरफ जाएगी और ectoderm और endoderm के दरमियान आके it will lie. They then undergo involution over the lip. ये mesoderm की बात हो रही है, यहाँ पे हम ये एरो देख सकते हैं, ये इन्वोल्यूशन ऑफ मेसोडर्म को शो कर रहा है, एंड पोजीशन देमसेल्व्स बिटवीन इनसाइड एंडोडर्म एंड द एक्सटर्नल सरफेस लेयर ऑफ द सेल्स, दैट इज एक्टोडर्म। तो मेसोडर्म इन्वोल्यूशन करके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान आ जाएगी। The dorsal lip of the blastopore thus undergoes lateral extension and forms the lateral lip.